مجاہدین کی جانب سے نواز شریف صاحب کو یہ نعمت صاحب دے لیں کی جانب سے پاکستانی قوم کے بے غیرت وزیر اعظم بے شرم وزیر اعظم نواز شریف کے لیے چوڑیوں اور دوپٹے کا تحفہ ہے جو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے حوالے اور اسے بھیجا جائے گا. خواتین اسے نعمت اللہ خان صاحب کے حوالے کر رہی ہیں. نواز شریف سقوط ڈھاکہ کے بعد سقوط کارگل پاکستان کی قوم کی تاریخ کا وہ سیاہ باب ہے جس سیاہ باب نے پاکستانی قوم پاکستان کی بہنوں اور پاکستان کی بیٹیوں کے سر شرم سے جھکا دیے ہیں. تم کو آج ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے چوڑیوں کا تحفہ دیا ہے, دوپٹہ دیا ہے. نواز شریف تم اسی قابل ہو, تم چوڑیاں پہنو اور چوڑیاں پہن کر تم اپنے گھر میں جا کر بیٹھو. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستانی قوم مجاہدین کے ساتھ ہے, پاکستانی قوم افواج پاکستان کے ساتھ ہے, پاکستانی قوم نواز شریف اس کی کیبنٹ اس کی قومی اسمبلی کے ساتھ نہیں ہے. تم جو کچھ کہہ رہے ہو اور جو کچھ کر رہے ہو تمہیں انشاءاللہ تعالی ایک دن اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. اس ملک کے وزیر اعظم بھی عبرتناک انجام کو پہنچے ہیں اور تم یہ سب کچھ جانتے ہو. اس کے باوجود تم نے یہ سب کچھ کیا ہے. تم ہندوستان سے مذاکرات چاہتے ہو, تم ہندوستان سے جنگ نہیں چاہتے. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ تمہیں پاکستان کا مفاد عزیز ہے, اس لیے کہ تم ہندوستان کو چینی ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہو. تم نے ہندوستان میں اسٹیل مل کھولنے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں, تم نے ہندوستان میں سڑکیں بنانے کے معاہدے کیے ہوئے ہیں. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اعلیٰ عدالتی تحقیقاتی کمیشن قائم. وزیر اعظم جس کو صرف 15% ووٹ ملے تھے, 85% ووٹ اس کو نہیں ملے, کہتا ہے میں بھاری مینڈیٹ میں نے حاصل کیا ہے. نواز شریف تمہارے بھاری مینڈیٹ کی تیاری انشاءاللہ جماعت اسلامی کھولے گے. یاد رکھو کشمیر کے مجاہدین کے 70,000 مجاہدین کا لہو, شہداء کا لہو تم نے جس کا سودا ہندوستان سے کیا ہے, پریزیڈنٹ کلنٹن سے کیا ہے, انشاءاللہ یہ سودا تم کو بہت مہنگا پڑے گا. تم کہتے ہو کہ میں کلنٹن سے ملنے اس لیے گیا تھا کہ چوتھی جنگ چھڑنے کا اندیشہ تھا. تم جھوٹ بولتے ہو. تم امریکہ اس لیے نہیں گئے تھے. تم امریکہ اپنی بیگم کے ساتھ, ہلیری کلنٹن کے ساتھ اور کلنٹن کے ساتھ فوٹو کھنچوانے کے لیے گئے تھے تاکہ تم لوگوں کو یہ دکھا سکو یہ پریزیڈنٹ کلنٹن, یہ ہیری کلنٹن ہیں, ان کے ساتھ ہمارا فوٹو ہے. تم نے اخبارات میں یہ اعلان کروایا کہ تم نے پریزیڈنٹ کے ساتھ ناشتہ کیا ہے. انہوں نے تردید کی کہ تم نے ناشتہ نہیں کیا تھا. انہوں نے تردید کی کہ ہلیری کلنٹن بیگم نواز شریف سے نہیں ملی تھی. تم نے پوری قوم کو بے عزت کیا ہے. نواز شریف تم نہیں جانتے یہ کون, یہ غیور کون, اس کی تاریخ کیا ہے. تم نہیں جانتے نواز شریف یہ امت مسلمہ جس مقام پر آج تم نے کھڑا کر دیا ہے اس حصے کو پاکستان کے اندر, یہ وہ مقام نہیں ہے جس مقام پر امت مسلمہ کو دنیا کی امامت اور قیادت کے منصب پر
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ कर गए थे। नवाज शरीफ, तुम याद रखो, तुमने प्रेसिडेंट क्लिंटन से जो वादा किया है, पूरी कौम इसको मुस्तरद करती है। ये कराची की बहनें, ये कराची की बेटियां, आप गवाह रहिएगा, जी टीवी वाले गवाह रहे कि ताहद नजर खवातीन है, मुर्बापोश खवातीन है, पूरी सड़क के ऊपर खवातीन है। याद रखो, ये खवातीन अकेली खवातीन नहीं है, ये पूरी कौम की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये पूरी पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये मुजाहिदीन की नुमाइंदा खवातीन हैं, ये पाकिस्तानी फौज की नुमाइंदा खवातीन हैं। आज ये फैसला कर रही हैं और तुमसे मुतालबा करते हैं हम, आप सब हाथ उठाकर जवाब दीजिए कि नवाज शरीफ इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पाकिस्तान को तुम जैसा बुज़दिल, तुम जैसा कम हिम्मत और तुम जैसा वफाद परस्त वज़ीर आज़म नहीं चाहिए है। हमें बहादुर और निडर वज़ीर आज़म चाहते हैं तो कौम को उस भवन से निकाल सके। नवाज शरीफ, तुम जिहाद से गुरेज इख्तियार कर रहे हो। हमारे नौजवान जिहाद को अपने गले से लगाना चाहते हैं, तुम जिहाद से फरार ढूंढ रहे हो। अब मुजाहिदीन वो कश्मीर की बर्फ चोटियों पर बैठे हुए हैं, वो जिहाद के जरिए से शहादत को मकबूल बनाए हुए हैं। नवाज शरीफ, तुमको नहीं मालूम कि जिहाद क्या है, तुमको नहीं मालूम कि तसव्वुर शहादत क्या है, तुमको नहीं मालूम कि उम्मत मुस्लिमा क्या है। तुम सिर्फ लोहे के एक व्यापारी, तुम एक लोहारी हो, लोहार हो। तुम नजरिए पाकिस्तान और पाकिस्तान की तहरीक को उससे वाकिफ नहीं हो। मैं तुमको बताता हूँ तकदीर उलूम क्या है। शमशीर सना अव्वल ताऊस और बाद आखिर। शमशीर सना अव्वल हम चाहते हैं, हम चाहते हैं हिंदुस्तान से जिहाद होना चाहिए। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान का जो जोम है मिनी पावर का, हम वो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन तुम हमारे रास्ते में रुकावट हो। फौज के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से कहते हैं, जनाब जनरल मुशर्रफ साहब, आप पाकिस्तानी फौज के कमांडर इन चीफ है, हम आपकी इज्जत करते हैं, हम आपकी तौकीर करते हैं, लेकिन हम आपसे सिर्फ ये गुजारिश करते हैं, जनरल मुशर्रफ साहब हिम्मत से काम लीजिए, आगे बढ़िए। पूरी कौम इंशाअल्लाह आपके साथ है और इस कौम ने इंशाअल्लाह ताला जब भी मुत्तहिद होकर किसी का साथ दिया है तो शिकस्त उसका मुकद्दर नहीं बन सकती है। और इंशाअल्लाह ताला कारगिल का ये अलमिया नहीं पेश आएगा। मुजाहिदीन उन पहाड़ियों से नहीं हटेंगे और पाकिस्तानी फौज भी एक वक्त आएगा जब ये कहेगी और ये मानेगी कि कारगिल की चोटियों पर जो लोग पहुंचे थे वो कश्मीर का फैसला करने के लिए पहुंचे थे और कश्मीर का फैसला इंशाअल्लाह अनकरीब होगा। इस कौम के इतिहास से होगा, इस कौम और फौज के इतिहास से होगा, इस कौम और मुजाहिदीन के इतिहास से होगा। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ये कैसा रहा बताया? नहीं, मतलब आपकी तासुरात क्या है मुजाहिर के बाद? और अगर पूरी कौम की आवाज की नुमाइंदा इस्तेमाल आ जाए तो असल बात यह है पाकिस्तानी कौम इन्हीं जज्बात और इन्हीं नजरियात की हामिल है, लेकिन हमारे हुक्मरान जो है उन जज्बात से आरी है और वो अपने
अपने ذاتی मफादात की वजह से कुछ और अपने अहदाफ रखते हैं, इसलिए उनको ये हकीकत नजर नहीं आती। लेकिन जो हकीकत आज लोगों ने देखी है, इंशाअल्लाह ताला इसी पर कौमी तौर पर अमल दरामद होगा और इंशाअल्लाह बहुत जल्द नवाज शरीफ साहब का अंजाम साज़ो हुक्मरानों जैसा ही होगा और कारगिल और मुजाहिदीन खत्म आएंगे और कश्मीर आजाद होगा। का काम नहीं होता और वो जिहाद जो है वो इंशाअल्लाह गलियों और घरों के अंदर भी लड़ा जाएगा, ना सिर्फ मुजाहिदीन के साथ हैं हम सब लोग, और इंशाअल्लाह हमारी दुआएं, हमारी सारी काविशें उनके लिए हैं और इंशाअल्लाह वो जिहाद कामयाब हो गया, चाहे हुक्मरान जितनी भी साजिशें कर ले वो कभी भी कामयाब नहीं होगा इंशाअल्लाह। और कोई बहुत गलत है, और बल्कि ये कि हमें बढ़ के हमारे तो बच्चे भी ऐसे कि हम बढ़ के इसमें बाहर में जाएंगे, छोटे छोटे बच्चों का ये हाल है और बढ़ के खाना पीना सब खत्म है। सुराग तो यही है कि यहाँ बिल्कुल ये नहीं लगता है कि इंसान की मौत वाकई होगी। गद्दारी की गई है न सिर्फ मुजाहिदीन के साथ, पाकिस्तान के अवाम के साथ, और ये इंतहाई जुल्म है। और मैं कहती हूँ पूरे वेस्टर्न ममालिक से जो अपने आप को डेमोक्रेसी के वो कहते हैं लंबरदार कहते हैं, कि ये कहाँ का इंसाफ है या कहाँ की ह्यूमन राइट्स है कि जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो मेन लोग हैं कश्मीरी, उनसे कोई मशवरा नहीं लिया गया, उनको मेज पर भी नहीं बिठाया गया, उनसे कोई बात नहीं की गई। ये कोई इंसाफ नहीं है कि नवाज शरीफ एक अकेले तने तनहा जाके पूरी कौम का फैसला कर दें। 70,000 मुसलमानों के शहीदों का सारे उनके उस फौज को जिनको बरसों वो लेकर चले हैं उसको एक सेकंड के अंदर वो मेज के ऊपर जाके हार कर आ जाए, ये इंतहाई गद्दारी है पूरे मुल्क से और हम इसे तस्लीम नहीं करते। हम उनसे कहते हैं कि वो इस्तीफा दें और वो अगर गैरत नहीं रखते और वो हमारी नुमाइंदगी नहीं कर सकते तो कुर्सी छोड़ दें। हमें ऐसा वजीर आजम नहीं चाहिए, इतना गोदा, इतना निकम्मा, इतना बेगैरत, हम इसे कबूल नहीं करते। हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि कराची की, न सिर्फ कराची की बल्कि उम्मत मुस्लिमा की तमाम माएँ बहनें बेटियाँ अपने मुजाहिद बेटों और भाइयों के साथ हैं। हमारा ये पैगाम है कि आप हिम्मत और जुर्रत के साथ कारगिल की चोटियों पर डटे रहें। इंशाअल्लाह ये मुनाफिक हुक्मरान, ये कौम को धोखा देने वाले लोग और इनकी सारी चालें और मकरूह फरेब इंशाअल्लाह नेस्त नाबूद होगा। और हम अपने मुजाहिद भाइयों के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो है कि वो कारगिल की उन चोटियों पर जहाँ कोई वसाइल न हो, जहाँ उनके लिए कोई मुआवनत के लिए मौजूद न हो, अल्लाह ताला अपनी ताईद गैबी के जरिए से उनको खिलाए पिलाए, उनके असले का इंतजाम करे और उनके दिलों को तकबीरत क़ल्ब अता फरमाए। हम सब इंशाअल्लाह मुजाहिदीन कश्मीर और अहले कश्मीर की पुष्ट पर मौजूद है और इस वक्त जो सानहा हुआ है हम उस सानहे में, उस दुख में, उनके उस दर्द गम में बराबर के शरीक हैं और हमसे जो हो सकेगा हम इंशाअल्लाह इस जिहाद के अंदर लगाएंगे। और वो इस बात का यकीन रखें कि जिस जिहाद के अंदर माएँ बहनें बेटियाँ शामिल हो जाती है, फिर वो गली कूचों के अंदर लड़ा जाता है और दुश्मन को पिसपा होने के लिए मजबूर कर देता है। हम इंशाअल्लाह हर वो काम करने को तैयार होंगी जो जदोजहद आज़ादी को कामयाबी की मंजिल तक पहुँचाए और सुरखरू करके पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का हिस्सा बना दे। इंशाअल्लाह हम सब साथ हैं।